हेलो एवरीवन। आज हम कहानी सुनेंगे द कैट्स जजमेंट। इस कहानी की खास बात ये है कि पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे और बाद में हम इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द कैट्स जजमेंट। Once upon a time, there lived a woodpecker in the hole of a large peepal tree. He had been living there for many years. He was very friendly with all little animals and birds that lived in its neighborhood. One day, the woodpecker left his cozy home to look for food. He traveled far and wide and came to a field of corn. It was harvest time and the corn was fully ripe. He remained in the field for many days and ate as much as he could. When the woodpecker was away, a little rabbit came there looking for a place to live. He had no home of his own, so he went and occupied the woodpecker's house. The next day, after an enjoyable stay in the cornfield, the woodpecker returned to his house. He found the little rabbit relaxing there and enjoying carrots. Upon seeing him, the woodpecker was very angry and asked, "What are you doing here? This is my house." "Your house?" replied the rabbit. "It is mine. I have been staying in this house for many days." The quarrel between the two took an ugly turn. Even neighbors could not sort out their problem. Finally, they decided to go to a learned cat who was wise and old. She lived on the banks of the river Ganga. As she saw them coming towards her, she closed her eyes and started chanting mantras by holding a string of prayer beads in her hands. The woodpecker and rabbit sat at a distance from her. They were scared to go near her. As the cat opened her eyes, the woodpecker said, "There is a quarrel between me and the rabbit. Please give your fair judgment after listening to our story. You may punish whomsoever you find guilty." "Dear children, don't say such a wicked thing," she said in a sweet voice. "After coming from Haridwar, the holy city, I have surrendered myself to God. So I don't think of punishing anyone. You tell me what is the matter." As the woodpecker began to tell the whole story, the cat said, "Dear, I am very old. I can't hear what you are saying. Both of you have to come closer to me." The woodpecker and the rabbit trusted her and moved closer to her. Before they could realize, the wicked cat pounced on them. She killed them with her sharp paws and ate them up. Moral: a crook does not change his behavior, even if he changes his outward appearance. So beware of such people. Now we are going to read this story in Hindi also. If you like, then please hit a like button, share and subscribe my channel. तो अब इस कहानी को सुनते हैं हिंदी में। द कैट्स जजमेंट यानी कि बिल्ली का न्याय। एक बार की बात है,
एक कठफोड़वा एक पीपल के पेड़ में घर बनाकर रहता था। वह वहाँ बहुत सालों से रह रहा था। वह अपने आसपास के छोटे जानवरों और पक्षियों से काफी दोस्ती वाला व्यवहार करता था। एक दिन कठफोड़वा अपने उस घर को छोड़कर खाने की तलाश में निकला। वह बहुत दूर तक गया और एक मक्के के खेत में पहुंचा। यह फसल के कटने का समय था। मक्के की फसल पकी हुई थी। वह वहां बहुत दिनों तक रह गया और जितना वह खा सकता था उतना उसने मक्का खाया। जब कठफोड़वा अपने घर से दूर था तो एक छोटा सा खरगोश रहने की जगह को ढूंढते हुए वहां आया। उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए उसने कठफोड़वा के घर में ही रहना शुरू कर दिया। अगले दिन मक्के के खेत में एक सुखद ठहराव के बाद कठफोड़वा अपने घर को वापस आया। उसने वहां एक छोटे से खरगोश को आराम करते और गाजर का आनंद लेते पाया। उसे देखते ही कठफोड़वा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। तुम्हारा घर? खरगोश ने उत्तर दिया, यह मेरा है। मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने इस घर को बनाया था। मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ। तुम मेरे पड़ोसियों से भी पूछ सकते हो, कठफोड़वा ने बोला। खरगोश कठफोड़वा की बात सुनने को ही तैयार नहीं था। वह वापस जोर से चिल्लाया, मैं क्यों पूछूं किसी से? जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा। मैं इस घर को खाली नहीं करूँगा। दोनों के बीच का झगड़ा एक खराब स्थिति में पहुंच गया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाया। अंततः उन्होंने फैसला किया कि वह एक ज्ञानी बिल्ली, जो बहुत समझदार और उम्र में काफी बड़ी है, उसके पास जाएंगे। वह गंगा नदी के किनारे रहती है। जैसे ही बिल्ली ने उन दोनों को आते हुए देखा तो अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का जाप करने लगी। वह हाथ में मोतियों से बनी माला को भी जपने लगी। कठफोड़वा और खरगोश उससे कुछ ही दूरी पर बैठ गए। वे दोनों उसके पास जाने से डर रहे थे। जैसे ही बिल्ली ने अपनी आंखें खोली, कठफोड़वा ने कहा, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है। कृपया हमारी कहानी सुनने के बाद एक न्यायपूर्ण फैसला करें। आप हम में से जो भी दोषी है उसे सजा भी सुना सकती हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्रूर शब्दों का प्रयोग मत करो, बिल्ली ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा। हरिद्वार एक पवित्र शहर से आने के बाद मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, इसलिए मैं किसी को सजा देने के बारे में नहीं सोचती हूँ। तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। जैसे ही कठफोड़वा ने अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू किया तो बिल्ली ने कहा, प्रिय, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। मैं नहीं सुन सकती कि तुम क्या कह रहे हो। तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। कठफोड़वा और खरगोश ने उस पर भरोसा किया और उसके पास चले गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, धूर्त बिल्ली ने उन पर झपट्टा मारा। उसने उन्हें अपने तेज पंजों से मार डाला और खा गई। शिक्षा: धूर्त व्यक्ति कभी भी बदल नहीं सकता, चाहे वह कितना ही बाहरी दिखावा कर ले। इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। यानी कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समय समय पर अपना आचरण बदलते रहते हैं,
वे अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और ही दिखावा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।